let me start that. Okay, we have studied about the empirical formula, molecular formula, and we have also studied about the molecular mass, that how we are going to find out molecular mass. So here you can see it's page number 14. All of you can please open it. It's page number 14, and we are doing the second numerical, example number 1.3. You can see it on your screens as well. I have shared the screen. That calculate the formula mass of potassium sulfate. Now they have written the formula as well, that it is K2SO4. But last time I also told you that it is not necessary, it's not essential. When they give you in the paper, they also provide you with the formula. So आपको formulas खुद से याद होने चाहिए, so that आपके ये मुफ्त के marks हैं. If you know the formula and atomic weight, simply you have to add them and give the answer. So you can see it's potassium. Potassium is K and sulfate is SO4. Potassium sulfate, K2SO4. Now if you see the ओके, पोटेशियम सल्फेट, द फॉर्मूला इज K2SO4. अब मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियसली भी बता देती हूँ जिन्होंने क्लास नहीं ली. देयर वाज अ टॉपिक जिसमें लिखा हुआ था दैट हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द फॉर्मूला, इन विच यू कैन सी के जो वैलेंसीज हैं, जो मैंने आपको टेबल दिया था बिफोर ईद, यू हैव टू लर्न दैट. उसमें जो वैलेंसीज हैं, लाइक पोटेशियम इज K एंड इसकी वैलेंसी है +1, वो एक्सचेंज हो जाती है दूसरे एलिमेंट के साथ. Like potassium is K, sulfate is SO4 -2. जो SO4 का -2 है, that is going to be exchanged with potassium और उसके साथ आ जाएगा, मतलब क्रॉस चेंज कर लेते हैं ये अपनी वैलेंसी को. And potassium was +1, that's why it is not written over here. This is how you are going to write down a formula K2SO4. Now, in the previous lecture, we have determined the weight of HNO3, which is nitric acid. Now we are going to determine the weight of potassium sulfate. Now you can see this is atomic mass of potassium is equal to 39 AMU. 39 is a standard weight of potassium. It is never going to be changed. So जब भी आपने weight find out करना है potassium कहीं पे भी है, you must know that it is 39. Then we have atomic mass of sulfur, which is 32. It is also the same. Oxygen 16. And how we are going to calculate, you can see K2. This 2 will be multiplied with the atomic mass of potassium. And if there is not written anything like sulfur, it means it is considered to be 1. And oxygen, it is 4. The atomic mass of oxygen is going to be multiplied by 4. Means oxygen ke 4 atoms hain. So 1 atom weight of oxygen is 16. And when it is going to be multiplied by 4, we get the 4 oxygen atom weight, which is 64. Simply we are going to multiply with that ratio, and at the end we are going to add it up and it becomes 174 AMU, atomic mass unit. हमने last time इसको भी study किया था. Right now what is the purpose के ये आपको as an MCQ भी आ सकता है, it can come as a 2-mark question, किसी तरह से भी आ सकता है. So it's very basic thing of chemistry. एकदम से आपको याद नहीं होगी. जिनका तो मैथ्स बहुत अच्छा है, the person who is very good in लर्निंग ऑफ कैलकुलेटिव फिगर्स, तो उनके लिए तो बहुत इजी है याद करना. ठीक है, जिनको नंबर्स वगैरह बहुत जल्दी याद हो जाते हैं. बट वो बच्चे जिनको नहीं याद होते, दैट्स नथिंग टू वरी. आप थोड़ा सा टाइम लें एंड यू कैन रिपीट इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. यू विल बी एबल टू गेट अ गुड कमांड ऑन दैट. ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स. टीचर इसका प्रॉपर फार्मूला नहीं लिखा किसी एक जगह पे? किस चीज का फार्मूला? ये जब भी हमने फाइंड किया है इसका मैथ्स, यानी 174. यस. मुझे समझ नहीं आई आपकी बात कि इसका फॉर्मूला कहाँ पे लिखना है. मतलब टीचर जैसे ये अब आप 2 से मल्टीप्लाई किया 39 को, 1 को मल्टीप्लाई किया 32 से, तो ये कैसे किया है? देखो फॉर्मूला, लुक एट द फॉर्मूला. फॉर्मूला यूनिट, माउस नजर आ रहा होगा आपको, K2 लिखा हुआ है, isn't it? मैम बताएं साथ साथ. K2 मींस सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला एक्यूरेट पता होना चाहिए कि जिसका हम वेट डिटरमिन करने जा रहे हैं. व्हाट इज द एक्यूरेट फॉर्मूला फॉर दैट, राइट? अब पोटेशियम लिखा हुआ है K. हमें जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया से पिछला लेक्चर आप YouTube पर ढूंढिएगा और सुनिएगा, यू विल
नो के किस तरीके से हमने केमिकल फॉर्मूला लिखना है, उसमें आपको पता लगेगा। K2SO4 हमें पता है इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखें K है, K मींस पोटाशियम के 2 एटम्स हैं, तो हमारे पास एक चीज का वेट जो है वो पोटाशियम का है सिर्फ 39। हमने 2 एटम्स का वेट निकालना, हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दैट। तो हमने किया 2 मल्टीप्लाई विद 39। सल्फर S, इट इज ओनली 1। आप देख रहे हैं सिर्फ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सो इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई। अब ना भी करें तो दैट इज अंडरस्टूड के 32 वेट है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की बारी आ जाती है 4, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 16, द आंसर इज 64। इनको आप सम अप करोगे एंड यू विल गिव द आंसर, ठीक है। जैसे अगर आप पीछे वाला देखें HNO3, टर्न 1 पेज बिफोर 13, वहां पे देखें हाइड्रोजन का 1 है वेट, नाइट्रोजन का 14 है, O का 16 है, उसको हमने उधर 3 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन को, तो हमारे पास टोटल आंसर आया है 63 AMU। समझ आ रहा है? यस। तो टीचर हमें इनके एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे? हाँ जी, हाँ जी, यही मैं आपको बता रही हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपको खुद से याद होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन बेहतर है कि आप इसको रिपीटेडली लिखें। यानी किसी एक पेज पे या स्टिकी नोट पे सारे के सारे एटॉमिक वेट, सल्फर का ये है, ऑक्सीजन का ये है, पोटाशियम ये है। कुछ वेट्स मैं आपको लिखवा भी दूंगी जब हमारा फिजिकल क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे, मैं तब आपको ज्यादा बेहतर बताऊंगी कि किस तरह करना है, ठीक है। इस तरह से एक की बन जाती है, आप अपने पास उसको सेव कर सकते हो। क्लियर? यस। Okay, next is test yourself. Number 1, what is the relationship between empirical formula and formula unit? इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? क्लास 9, लेट मी क्लियर वन थिंग मोर कि आपको इनके टेस्ट योरसेल्फ के और शॉर्ट आंसर्स के नोट्स इट विल बी सून प्रोवाइडेड टू यू। जब आपको होमवर्क मिलेगा इनका साइंस सब्जेक्ट्स का, यू डिडंट गेट होमवर्क येट ना? टीचर हमें फिजिक्स का टीचर ने ऑनलाइन क्लास में बता दिया था। बट टीचर आप हमें नोट्स प्रोवाइड कर दीजिएगा, हमने ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट यू वरी अबाउट दैट। लेकिन क्लासेस वो ठीक है, उन्होंने अगर बता दिया था आपको, लेकिन आपको एक मैनुअल फॉर्म में भी लाजमी आएगा कि आपने किस तरह से जो होमवर्क है वो करने हैं क्वेश्चन वाइज, ठीक है। अब इसको मैं जस्ट, हाँ, ओके ओके। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट? तो आपने इसमें सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला का लिखना है कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, और फिर आप फार्मूला यूनिट के साथ में डेफिनेशन लिख दोगे, एंड देन सिंपली यू विल गिव द एग्जांपल। किसी की भी दे सकते हो, ग्लूकोज की, वाटर की, एनीवन यू वांट टू गिव द एग्जांपल। देन नंबर 2, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन मोलेक्युलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला? ये हमने पीछे सारा स्टडी किया था, सो यू कैन मार्क मेक अ लाइन एंड यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन a molecular and empirical formula. Then number 3, identify the following formula as formula units or molecular formula. तो आपको कुछ एलिमेंट्स कंपाउंड्स दिए हुए हैं, आपने इनमें से डिस्क्राइब करना है कि कौन से वाले जो हैं फॉर्मूला यूनिट्स हैं और कौन सा मोलेकुलर फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला यूनिट में जो है वो है बेरियम कार्बोनेट और पोटाशियम ब्रोमाइड। बेरियम कार्बोनेट BaCO3 एंड पोटाशियम ब्रोमाइड। आप देख रहे हैं सिंपल सिंपल इसमें चीजें लिखी हुई हैं। इट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। देन वी हैव molecular formula remaining, ये H2O2 CH4 ग्लूकोज एंड शुगर, ये सारे के सारे मोलेकुलर फॉर्मूला हैं। अब जिन बच्चों ने तो क्लास ली थी, लाइक ईमान ने क्लास ली थी लास्ट टाइम, और एक और बच्ची थी, आई डोंट, फातिमा थी, आई डोंट थिंक सो उन्हें समझ ना आ रहा हो उनको, अगर उन्होंने याद किया है या पढ़ा है, दे विल इजीली नो के क्या क्या बात कर रही हूँ मैं। जिन्होंने पिछला लेक्चर मिस किया है, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। देन वी हैव calculate the formula masses of, sorry, number 4, what is empirical formula of acetic acid? Acetic acid का formula जो हम usually use करते हैं, that is CH3COOH and it is of vinegar। इसका जो है हमारे पास empirical formula वो होगा CH2O। then find out its molecular mass। तो आप simply what you will do, you are going to add it up, like carbon is 12, hydrogen के आप देखें 3 हैं, तो hydrogen is 1 and it is going to be multiplied by 3, it is 3, carbon is again 12, oxygen 16 plus 16 plus 1। क्या आंसर आएगा सारे बच्चे जरा प्लीज करें इसको जल्दी से कैलकुलेट। हाँ, स्विच ऑन योर कैमरास जल्दी से, डोंट वेस्ट द टाइम, हरी अप, मैंने आगे भी पढ़ाना है।
Hurry up, hurry up, hurry up. All of you switch on your cameras and show me where you are doing your work. और अगर आप कैलकुलेट कर चुके हैं, give me the answer. Anyone? किसी ने किया कैलकुलेट? टीचर 72. नो. ईमान कैलकुलेट करें दोबारा से. मैं बोलती हूँ एटॉमिक वेट्स आप प्लस करते जाएं. कार्बन इज 12 प्लस 3 because hydrogen is 1 and it is going to be multiplied with 3. 12 plus 3 plus 12 plus 16 plus 16 and plus 1. क्या बन रहा है आंसर? जल्दी से. Yes, Iman, tell me the correct answer. Halima. Yeah, I'm doing. जल्दी जल्दी करें. 1 minute, teacher. 60. Yeah, it's 60 AMU. AMU is the unit you are going to mention it. ठीक है? Then calculate the टीचर ये formula हमने masses किया of. क्या है? Umayma, we have calculate the weight. जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, हमने ऊपर K2SO4 का किया ना weight find out. उमैमा आगे से आंसर करने बेटे. Yes. सिमिलरली हमने एसिटिक एसिड, ये देखो नंबर 4 वाले का आंसर, इसका मोलेक्युलर मास हम फाइंड आउट कर रहे हैं CH3COOH. सिंपली कार्बन है हमारे पास 12, हाइड्रोजन है 1. कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? We have 4. no, how it is 4? We are talking about only this H. It is 3. CH3. We are not going to और एक total लास्ट it. पे भी तो हमने है. उसको टोटल, उसको उस तरह नहीं करना. आपने ऊपर देखा है ना, जितने भी एटम्स हमारे हैं हमने उनको अलग अलग किया है. अब यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, हम सिर्फ इसी को अभी कैलकुलेट करेंगे. आई अंडरस्टैंड कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हो फ्रॉम क्लास 8 जो हमने बैलेंस की थी कोई है, राइट? उस तरह हमने नहीं करना. समझे? सी है, इसके नीचे 12 लिख लें. हाइड्रोजन है, इसके 3 है, इसके नीचे 3 लिख लें. बिकॉज 1 हाइड्रोजन इज 1, तो 3 एटम है तो 3 प्लस आगे सी आ गया. अगेन कितना वेट है कार्बन का? कार्बन का कितना वेट अभी मैंने आपको 12. बताया? 12 plus 12. Oxygen is, how much is the weight of oxygen? 16. 16. Good. Yes, 16. Again plus one more oxygen, कितना हो जाएगा? 16. 16 plus hydrogen is, 1. what is the weight of hydrogen? 1. This is the whole formula. अब आप इसको total कर लें. It is 60. This is the way you are going to find out the formula. अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ. नीचे ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. दिस इज योर होमवर्क. ऑल ऑफ यू हैव टू डू इट बिफोर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट क्लास. मैं आपसे पहले ये चेक करूंगी, ठीक है? आपने कॉपी पे प्रॉपर तरीके से करके रखना है. लाइक Na2SO4. रफ ओके करना. ओके ईमान. हाँ जी, रफ है, नॉट ऑन मी. ओके. Take a paper and just do it over there. Na is 23. It is going to be multiplied with 2 because sodium is having 2 atoms, right? मैं स्पेशली आपको बता रही हूँ बेटे. सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16. तो 4 atoms हैं, 16 multiplied by 4, it is 64. So you are going to add up all and you will get the weight of Na2SO4. Similarly, zinc sulfate and copper CuCO3, copper carbonate, इन तीनों के आपने एटॉमिक वेट्स, फॉर्मूला मैसेज फाइंड आउट करने हैं. अब आपसे टीचर देंगे ये ये आएगा इनके कि हमें एटॉमिक. कहाँ से पता लगेगा? Yes. कि कहाँ से पता लगेगा मिस जिंक का क्या वेट है? ऑलराइट, Yes, यही what पूछना. will you are going to open the periodic table on chapter number 3. मैंने आपको शुरू में in the first lecture I have told you. You are going to open the page 48. Open it.
open it, hurry up fastly. Open कर लिया सबने? Yes. Yes. Give me. Okay. Over there you can see so many elements, right? Let's say you have to find out the weight of zinc, Zn. Go and find it out. Zinc कहाँ है? Zn. 65.39. Yes, but it is, you can see it is in the fourth row. Fourth row देखें yellow वाली. उमैमा नजर आ रही है? Can you see it? Yes. Fourth row. ग्रीन के सेकंड लास्ट देखो, जहां पे ग्रीन कलर है फोर्थ रो में, उसका सेकंड लास्ट एलिमेंट देखो जिसके ऊपर 12 लिखा हुआ है, उधर ही Zn है, जिंक. कैन यू सी इट? Yes. इसके नीचे देखें, ऊपर 30 उसका वेट नहीं है, नीचे जो है वो है एटॉमिक मास 65.39. दिस इज द वेट ऑफ जिंक. ऑलराइट, समझ आ रहा है मैमा? Yes. This is the एकदम weight. दोबारा But one बता thing, दें. okay, Halima, have you opened the book? Yes, teacher. है ना, मैं आपको साथ इसकी स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ. You are not easy with that. टीचर मैंने बुक खोली हुई है. खोली हुई है, चलें मैं आपको बताती हूँ. उधर देखें आप फोर्थ रो. जी. कैन यू सी इट? फोर्थ Yes. रो में 12 वाला एलिमेंट, उसके Yes. ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ? जिंक, Zn. Yes. इसके नीचे वेट देखें, छोटा सा लिखा हुआ 65.39. दिस इज द वेट जिसे हमने Okay. एड अप करना है. अब अगर जल्दी से मैं आपको सल्फर का बताऊं, सल्फर इज इन द 16 नोन मेटल्स. आप देखें थर्ड रो में, फाइंड आउट थर्ड रो और उसका 1 2 3 4 फोर्थ वाला एलिमेंट देखें, S. कैन यू फाइंड आउट? जी. उधर 32.07 लिखा हुआ है. दैट इज द वेट. तो हर एक का वेट, हर एक की आइडेंटिफिकेशन इज प्रेजेंट इन दिस पीरियोडिक टेबल. टीचर हम पॉइंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे फिर. यही बताने लगी हूँ आपको. लेट्स से इफ सम एलिमेंट हैव द वेट दैट इज एक्सीडिंग फ्रॉम 0.5, तो आप उसको मेंशन करेंगे. लाइक अगर आप क्लोरीन को देखें, इट इज 35.5, क्लोरीन इज 17. सल्फर से आगे ही देखें, Cl लिखा हुआ है, Yes. 35.45 लिखा हुआ है. ठीक है, अब 35.45 को अगर हम राउंड करते हैं तो व्हाट डज इट बिकेम? 35.5. ऑलराइट, so we are considering it 35.5. if we are talking about sulfur, 32.07 लिखने की जरूरत नहीं है because 0.0 is nothing for us. Similarly zinc 65 only because 3 से जो पीछे की वैल्यू है हम उसको 65 ही कंसीडर करते हैं. राउंड ऑफ करना आता है ना सबको? Yes. we will do the same. ठीक है, आप इसको जब करोगे प्रैक्टिकली तो आपको ज्यादा अच्छा आता जाएगा. बिकॉज आगे जो चैप्टर्स हैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं. अगर आपको मोलेक्युलर मैथ फाइंड आउट करना नहीं आएगा, आपको आगे नहीं आएगा काम. सो इट इज वेरी इजी. इसको परेशान होके नहीं करना. अभी इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा मुश्किल है ये. नहीं 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 हलीमा, इट्स नॉट मुश्किल. आप इसको जस्ट थोड़ा सा टाइम दें तो आप प्रैक्टिस से इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू. नहीं, मैं उस सेंस में कह रही हूँ कितने सारे जो हैं उनकी मैसेज याद करनी नहीं पड़ेगी. नहीं उन सबको याद नहीं करने की जरूरत है. मैं ये लाइक सोडियम याद करोगे, आप सल्फर याद करोगे, देखो जो रिपीट होने हैं. जो जब हम फिजिकल क्लास में आएंगे तब आप हमें एक दफा लिखवा दीजिएगा कि किस किस के याद करना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में ही आपको लिखवा दूंगी, कोई इशू नहीं. टीचर मोलेकुलर मैथ्स और फॉर्मूला मैथ्स एक ही होते हैं? जी एक ही नहीं होते हैं ये तो अब तुमने लड़की पढ़ा नहीं ना. ईमान ने क्वेश्चन किया था ना. Yes. इसका मतलब है पिछला वाला नहीं याद किया, ना ही पढ़ा आपने. जी. जी पढ़ना इसको और फिर मुझे बताना. ठीक है, फिर मैं आपको कल पूछूंगी कि क्या आपने पूछा था. ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज केमिकल स्पीशीज. अब डिफरेंट तरह के हमने एलिमेंट्स को स्टडी किया. वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल. नाउ कमिंग टुवर्ड्स केमिकल स्पीशीज, इट इज अ न्यू टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू. आपने पहले नहीं इससे पढ़ा होगा. आयंस,
आयंस में दो तरह की चीजें आ जाती हैं. नंबर वन इज कैटाइन एंड द अदर वन इज एनाइंस. कैटाइंस वो एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम कहते हैं कैटाइन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ दे आर गोइंग टू बी फॉर्म. मतलब कैसे एक आयन बन जाता है, उसके ऊपर कैसे पॉजिटिव आ जाता है, कैसे नेगेटिव चार्ज आ जाता है. और एनाइंस आर दोस्त जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. नाउ हाउ you are going to remember it that what is cation and anion, इसके ऊपर कौन सा चार्ज था. तो आपने एक चीज हमेशा जहन में रखनी है, जहां पे भी CAT cat आ रहा है, it is always going to be positive, right? Means you can say cat is always positive. Cations are positive ions and anions are negative ions. Then we have to study molecular ions and free radicals. Now we are going to start with ion. What is ion? Ion is an atom or group of atoms having a charge on it. Like I am talking about sodium. नीचे ही तीन equations हैं, you can see it. Sodium is an atom, Na simple, जिसके ऊपर कोई charge नहीं है. When it is having a charge positive, it becomes a ion. But how does it form? यही उन्होंने लिखा हुआ. Ion is an atom, like sodium is an atom or group of atoms having a charge on it. The charge may be positive or negative. There are two types of ions, that is cations and anions. Now what is cation? They are going to explain it. An atom or group of atoms having positive charge on it is called cation. The cations are formed, कैसे बनते हैं? When an atom loses electron from its outermost shell. देखिए सोडियम है, सोडियम gives us sodium ion plus 1 electron. Means सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन का स्टेटस था, उसमें से उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है. तो उसके बाद उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. ठीक है, आप एक चीज याद रख लेंगे तो आपको उसके ऑपोजिट लिखना होगा दूसरा. इट विल बी इजी फॉर यू. An atom or group of atoms having positive charge on it is called cation. The cations are formed when an atom, if you see the equations, hydrogen is an atom, it is loses an electron. It is showing that one electron इसने exclude कर दिया है. ठीक है, loses an electron from its outermost shell. For example, sodium ion, potassium ion are cations. The following equations show the formation of cations from atoms. This is an atom of hydrogen, sodium and calcium and they are losing their electrons. अब आप देखें, इन हाइड्रोजन has the ability to lose only one electron, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो इसलिए लूज कर सकता है. सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, which has a tendency to lose, that is why it is one electron. If we talk about calcium, calcium दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है. ये सारी की सारी चीजें आपको as it is याद करनी पड़ेंगी. Then coming towards anion. What is an anion? An atom or a group of atoms that has a negative charge on it is called anion. Anion is formed, इसी का opposite. Cation क्या था? उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया. Anion किस तरह होगा? It will gain the electron from somewhere. Anion is formed by the gain or addition of electrons to an atom. And remember one thing, when something is going to be added somewhere, तो उसकी जो position है उसको हम कहाँ mention करते हैं? We are going to mention that thing arrow से पहले, क्योंकि वो चीज add up हो रही है उसमें. ठीक है? For example, Cl negative, chloride ion and oxide ion. Following examples show you about the formation of anion by addition of electrons to an atom. Like chlorine है, उसमें जब एक electron add हो गया है, it is becoming anion, and oxygen also adding 2 electrons become oxide ion. सिर्फ आप कैटाइन याद कर लो तो आप एनाइन को लिख सकते हो. कैटाइन कह रहा है कि इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, निकल रहा है. And how an anion is going to be formed? An electron or group of electrons are going to be added up, so that's why an anion is going to be formed. In the next, move on the next page. Move on the next page, which is page number 15. It is here. Now we are going to see some kind of differences in it.
Before when 5 minutes left, please let me know. I have to take your attendance. Okay, Ji. This is difference between atoms and ions. You can see it and you can write down the year when it came. Atom, it is the smallest particle of an element, and what is ion? It is the smallest unit of an ionic compound, because different ions make a compound and it is known as ionic compound, like sodium chloride. Okay, this is a basic example. Then the second point, it can or cannot exist independently and can take part in a chemical reaction. But what happened in the form of ion? It cannot exist independently and is surrounded by oppositely charged ions. Means जब भी ionic structure हमने last two chapters में पढ़ा, last two lectures में discuss किया है, कि whenever there are ionic compounds तो उनका एक 3-dimensional structure create हो जाता है, ठीक है? Means when there is a positive ion तो वहाँ पे negative ions भी लाजमी होंगे and then it is going to work. It's not like that कि खाली hydrogen है, it is working. No. If there is some H positive, so then there must be Cl negative over there as well. Number 3, it is electrically neutral, but it has a net charge, either negative or positive. Then molecular ion. What is molecular ion? Molecular ion, when a molecule loses or gains an electron, it forms a molecular ion. Means पहले हम खाली ion पढ़ रहे थे तो हम उसमें atom की बात कर रहे थे. That's why we have discussed about atom and ion difference. Now we are going to find out molecular ion. That when a molecule loses or gains electron, it forms a molecular ion. Hence, molecular ion or radical is a species having positive or negative charge on it. Like other ions, they can be cationic molecular ions. Cationic होंगे तो positive charge, or anionic molecular ions if they carry negative charge. Cationic molecular ions are more abundant. Abundant means in excess than anionic molecular ions. Means periodic table में से अगर देखें तो ज़्यादा की tendency है to form positive ions. ठीक है? Halima, bete, what are you writing? Cationic molecular ions are more abundant. For example, CH4 positive, helium positive, and N2 plus positive. When gases are bombarded with high energy electrons in a discharge tube, they ionize to give molecular ions. ये बता रहे हैं आपको how they are formed. They have just written a line, but with the passage of time in the second chapter, you are going to study it. Now, table 1.8 shows some differences between molecule and molecular ion. Right? Number 1. It is the smallest particle of an element or compound which can exist independently and Teacher, shows excuse all me. the properties of that compound. Give it a टीचर ये molecular ion वाला दोबारा समझा दें. मॉलिक्यूलर आयन वाला दोबारा समझा दो. ओके, आगे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको समझ आएगा. मॉलिक्यूल कैसे बनता है? हाउ अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड? मैम गिव मी द आंसर साथ साथ. जब Atoms को मिला के बहुत Yes. सारे एटम जब मिलते हैं. हाँ जी, हम मॉलिक्यूल बना लेते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से तो नहीं बना सकते ना. लेट्स से मैंने बनाना है मीथेन, CH4 उसका फॉर्मूला है, तो देयर शुड बी रेशियो ऑफ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन. ऐसे ही है. यस तो अब अगर ये पूरे का पूरा मिलकर कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा. ठीक है, इसको हम कहेंगे ये बन गया है मोलेकुलर आयन. CH4 के ऊपर अगर चार्ज है, नेगेटिव का भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता हाँ जी, यही बता रहे हैं आपको. इट कैन बी कैटाइनिक एंड इट कैन बी एनाइनिक. और उस साथ में बता रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में ज्यादा जो टेंडेंसी है दैट आर ऑफ कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस. तो पॉजिटिव आयंस ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव आयंस. सिंपल, बस ये बताया हुआ. ठीक है. Wajir Rahman, what is it? Stop doing it. Okay, now I am going to, ये हम फिर next time करेंगे. First take me your attendance. Let me take it. मैमा, there is a highly need के साथ साथ आप लोग इसको याद करें बेटे. आपने पिछला लेक्चर लाजमी बुक से पढ़ना है. अब इस वक्त जो क्लास में प्रेजेंट है, आई एम जस्ट टेकिंग द अटेंडेंस ऑफ दैट स्टूडेंट. उसके बाद नहीं मैंने लेनी. हलीमा इज प्रेजेंट, ईमान इज प्रेजेंट. फैसल आप गायब होके आए हो इसलिए मैंने कोई अटेंडेंस नहीं लगानी है आपकी. वजी इज प्रेजेंट and Umaima is present. Alina was present, but I am not marking the attendance because she didn't take the whole class. टीचर आमना कह रही है कि उसका नेट चला गया, मगर वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रही है तो मुझे समझ नहीं आ रही कि नेट किस तरह गया है. Might be कोई नेट का पैकेज शैकेज होता हो, तरह का के व्हाट्सएप चलता है. Anyways, this is not the way. Amna is not taking classes. I don't know why. मुस्फिरा क्यों नहीं ले रही क्लास?